Hello everyone, welcome to the today's session of the editorial. So let's begin with our today's class. Let's see the vocabulary. So the first word is revelers. So the meaning of the revelers is someone who dance, drinks, sings, etc. at a party or in a public, especially in a noisy way. ठीक है? In Hindi, we call such persons called mauji. ठीक है? The person who dances, sings, have fun in the public is generally called as reveler. Okay, when more such people having common interests of like dancing, singing in a public place, when such people in a noisy way, dancing, singing, and doing things in a noisy way, when more than one people gathers. So such group of peoples, we call them revelers. Okay. So the second word is horrendous. Its meaning is extremely bad or shocking. Okay. So Hindi meaning is bhayanak. Next word is expertise, a high level of skill or knowledge. Visheshagyata. Okay. Having a high level of a skill or knowledge in any particular field, if we have. So to that thing, we called it as expertise. Next is exemplary, extremely good and deserving to be admired and copied. Udharanatmak. That means um, udharanatmak. That meaning like we can be, we have to be such a person so that they take us as a good example. Okay. We used to listen like आपको इस व्यक्ति की तरह बनना चाहिए, right? He's so good, like you has to follow him. So we are, the people should give the example of ours. Okay, when people give example of us to the other people, जब दूसरे लोगों को हमें एक उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे जब रेफर किया जाता है, at that time it is called as exemplary. ठीक है. Next word is stampede, a situation in which a group of people or animals start to run in a very fast, uncontrolled way because they are frightened or excited. That is bhagdad. है ना? We see many times like bhagdad मच जाती है ना? When a situation gets uncontrolled, when like earthquake occurs or when a natural disaster occurs, तभी we say this thing called stampede, bhagdad mat jana. Next is thronging. Okay. Next word is thronging. Meaning is being or going somewhere in a very large numbers. Okay. When many people go in a particular direction in large numbers, it is called as thronging. In Hindi or in simple words, we say it, भीड़ करते हुए फेरना. Like moving in groups is called as thronging. Okay. So hope itne words are these words are clear to you. Okay. Next. Next is stringent, very strict or severe. Okay, it is kathor, we can say. Okay. Stringent. Okay. His behavior is very stringent. मतलब उसका behavior जो है वो एक strict behavior है उस व्यक्ति का. लेकिन हम ऐसे रोज रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं ना, वो strict है. We can say it as his stringent behavior of man. ठीक है. Next is conclave, a private meeting at which the discussions are kept secret. निर्वाचिका सभा. ठीक है. A private meeting which is kept secret. It means other than the people attending the meeting, no one should know about the details of it. ठीक है. Next is languishing. Its meaning is
existing in an unpleasant or unwanted situation often for a long time. ठीक है, that means कोई भी जो एक अनप्लीजेंट या फिर कोई भी जो बुरी चीज है वो बहुत ही लंबे समय तक चलना, इन शॉर्ट दैट इज कॉल्ड एज लैंग्वेशिंग। ठीक है, लैंग्वेशिंग। ओके, so our next word is impetus, a force that encourages a particular action or make it more energetic or effective। प्रोत्साहन, ठीक है, encouraging, ठीक है, or giving a push to a particular thing, we call it as impetus। Okay, so next word is disconcerting, making someone feel uncertain and uncomfortable or worried। चिंताजनक, ठीक है, that is called as disconcerting। If we make people feel uncomfortable or worried, that is called as we are making them disconcerting। ठीक है, next word is concordance, a state in which things agree and do not conflict with each other। ठीक है, samarasya, in Hindi we call it as samarasya। Okay, you must have listened to this, right? Things are in concordance with their thoughts। ठीक है, you must have heard, that means the what we are thinking and the way in which we want things to be done, the other person is also thinking the same and things are going very softly, that is called as concordance। ठीक है, हम जो सोच रहे हैं और सामने वाला जो सोच रहा है वो दोनों की सोच सिमिलर है। ठीक है, वो उससे अग्री करते हैं और एक स्मूथ मैनर में चीजें आगे जा रही हैं, सो दैट इज कॉल्ड थिंग्स आर इन कॉन्कॉर्डेंस वी से, राइट? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्कॉर्डेंस। ओके, so let's move to the next word, invoked। invoked का मीनिंग होता है to mention or use a law, rule, etc. as a reason for doing something। अवलंब लेना, that means to take the reference, right? When we are doing a particular thing, when we mention ki okay, we are doing this so and so thing in accordance with this rule or in accordance with this law, and that time it is to say that we have invoked this thing। ठीक है, if we are doing a particular accounting entry, suppose in our books of accounts, so when we say according to the article 23 of so and so act, we have done this thing, so that means we have invoked that article। ठीक है, we are taken it as a reference, that is called as taking it, in short taking a reference of something is called as invoked। ठीक है, next is nexus। Next word is nexus। What's the meaning of nexus? A means of connection, tie or link। संबंध, ठीक है, creating a connection or a create or establishing a link is called as nexus। ठीक है, next is impediments, something that makes progress or movement difficult or impossible। बाधा, ठीक है, we in Hindi it is called as बाधा। ये ये मेरे रास्ते की बाधा है, we used to say in Hindi, right? ठीक है, that means hindrance, in other word it is called as hindrance। ठीक है, the thing which is stopping our progress, which is stopping us to move forward, is called as impediment। ठीक है, okay, next is tarnish, to damage or ruin the good quality of something such as person's reputation, image, etc। कलंकित करना, ठीक है, that means spoiling the image of a person or anything, like चाहे वो सामने वाला कितना भी अच्छा और सच्चा क्यों ना हो, हम लोगों को जाके कहते हैं ना, अरे ये तो ऐसा ही है, इसका स्वभाव भी ऐसा है, वो बहुत ही कंजूस, दैट मीन्स हम उसे टार्निश कर रहे हैं। ठीक है, उसका कलंकित कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड एज टार्निश। ठीक है, नेक्स्ट इज एन इडियम। ठीक है,
under a cloud. That means to be viewed with suspicion, distrust, or disapproval. Okay, that means we have a doubt on a particular thing. If we say are under a cloud, that means we have a doubt, we have a suspicion on them कि उन्होंने कुछ गलत किया है. ठीक है? Okay, let's move towards the article. So the today's topic of the article is burden of tragedy. People were allowed to walk into death trap in Morbi. मतलब लोगों को अलाउ किया था कि आप खुद से चल के जाएं डेथ ट्रैप, मौत के कुएं में. ट्रैप इज अ जाल बिछाना. ठीक है, मौत के जाल में आप जाएं. कहाँ पे? मोरबी. व्हाट इज मोरबी? मोरबी इज अ नेम ऑफ अ सिटी इन गुजरात. ठीक है, गुजरात में एक सिटी है मोरबी. ओके, इट इज अ प्रॉपर नाउन. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज रिटन इन कैपिटल लेटर. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दिस. ठीक है, आपको आर्टिकल पढ़ने के साथ साथ ग्रामर को भी ऑब्जर्व करते जाना है. दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग द एडिटोरियल. ठीक है, सो यू गाइस मस्ट बी नोइंग 2 से 3 दिन पहले a tragedy, an incident occurred in the city of Gujarat called Morbi. गुजरात के एक शहर में जिसका नाम है मोरबी. If you are aware of the general things, what is happening around us, so this is a very debated incident. बहुत ही ज्यादा चर्चित ये किस्सा था. तो इससे 3 दिन पहले ये हुआ था इंसिडेंट, जहाँ पे कई सारे लोग एक ब्रिज पे इकट्ठा हुए थे मोरबी शहर में, मच्छू रिवर के ऊपर. देन द ब्रिज कोलैप्स्ड, वो ब्रिज टूट गया और कई सारे लोगों की मौत हो गई. ठीक है, सो द ऑथर हियर, यहाँ पे author here has analyzed how that incident has occurred, who is all responsible, and what precautions should government take to avoid such incidents in the near future. Okay, so let's move towards our article. At least 40 people were killed after a suspension bridge. Suspension bridge means the bridge which is that means the bridge which has a support on cable. ठीक है, which is constructed with the support of cables. ठीक है, जो वो पिलर्स या कॉलम्स पे नहीं बना है बल्कि केबल्स के सपोर्ट से वो ब्रिज बना है. दैट इज कॉल्ड अ सस्पेंशन ब्रिज. ठीक है, अ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन गुजरात मोरबी टाउन कोलैप्स. ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है मोरबी के टाउन पे. दैट मीन्स इट्स अ टूरिस्ट प्लेस जो कि टूट गया है. ओके, सो read this whole paragraph. I will be back within a minute. Okay, तब तक आप इस आर्टिकल को पढ़ें. Okay, so hope you have read the article. Okay, where we were this. Okay, so the Gujarat Morbi, this bridge collapsed, sending hundreds of revelers. We had learned the meaning of revelers. Okay, the persons or group of people who dance, sings, especially in a noisy way at public places. ठीक है, that is called as revelers. मौजी याद आया आपको, right? तो वो जो लोग थे वहां पे ब्रिज पे मौज कर रहे थे, गा रहे थे, फोटोज खींच रहे थे. एज इट इज मेंशन्ड, इट इज अ टूरिस्ट स्पॉट.
तो लोग वहां पे नाच रहे थे, घूम रहे थे, फोटोज खींच रहे थे, तभी हजारों लोग गिर गए। कहाँ पे? इनटू मच्छू रिवर बिलो। ठीक है, नीचे नदी थी, मच्छू रिवर था, उस पे उसमें लोग गिर गए। ठीक है। एटलीस्ट 47 ऑफ द डेड वेर चिल्ड्रन। ऑफ द डेड मतलब जितने लोग मरे हैं उसमें से 47 आउट ऑफ टोटल 47 जो मरे हैं उसमें से आउट ऑफ टोटल, और जो 47 जो मरे हैं वो बचे हैं। सपोज अगर 100 लोग मरे हैं, ठीक है, अगर 100 लोग मरे हैं तो उसमें से 47 बच्चे हैं। ठीक है। ऑफ द डेड उसमें से जितने मरे हैं 47 आर चिल्ड्रन। ऑब्जर्व दिस ग्रामर। ठीक है। नेक्स्ट, मेकिंग इट वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट हॉरेंडस ट्रेजेडीज, मतलब सबसे भयानक ट्रेजेडी है ये इंडिया की अब तक जो भी ट्रेजेडीज हुई हैं। ठीक है। इनॉग्रेटेड इन 1879, ये ब्रिज 1879 में इनॉग्रेशन हुआ था। दैट मींस इट इज द ब्रिज ऑफ ब्रिटिश टाइम। ठीक है। द ब्रिज वाज रेनोवेटेड एंड ओपनड ऑन October 26 अक्टूबर को रिसेंटली ये ओपन हुआ था। ठीक है। रेनोवेट किया गया था इस ब्रिज को और ओपन किया गया था जनरल पब्लिक के लिए 4 days बिफोर द ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के सिर्फ 4 ही दिन पहले इस ब्रिज को खोला गया था फॉर द जनरल पीपल। ठीक है। दैट मीन्स आई थिंक 30 को ये इंसिडेंट हुआ था, 4 दिन पहले मतलब। ठीक है। 26 को ओपन किया, 30 को आई थिंक ये इंसिडेंट हुआ। ओके। सो a company that seems to have had no apparent expertise, कोई भी एक्सपर्ट और ट्रैक रिकॉर्ड इन द फील्ड वाज अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट। जो जिस कंपनी को इस रेनोवेशन, यहाँ पे हमने पढ़ा ना, रेनोवेट किया गया था, तो इस रेनोवेशन का जो जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उस कंपनी को रेनोवेशन का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है। उन्हें कुछ भी एक्सपर्टीज नहीं था और ट्रैक रिकॉर्ड मतलब उन्होंने पहले कभी भी काम नहीं किया था रेनोवेशन का। इस तरीके की कंपनी को इतना पुराना ब्रिज रेनोवेट करने के लिए दिया गया था। हियर ऑथर इज क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। ठीक है। ये बात कह के ऑथर ने क्रिटिसाइज किया है गवर्नमेंट को। ठीक है। There are questions about the fitness of the bridge. In any case, it was not intended to carry more than 150 people at the time, according to the reports. ठीक है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ठीक है, वो ब्रिज कैसा है, उसे कैसे बनाया गया था, वो बात तो दूर की है, पर ये सबसे मुख्य बात ये है कि एट अ टाइम एक ही समय पे उस ब्रिज पे 150 पीपल से ज्यादा वहां पे नहीं ठहर सकते हैं। पर जैसे कि हमने सुना होगा या फिर आर्टिकल में भी हम आगे पढ़ेंगे कि मोर देन हंड्रेड्स ऑफ पीपल, यहाँ पे हमने पढ़ा ना, सेंडिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल मतलब हजारों लोग वहां पे उस ब्रिज पे एक साथ मौजूद थे। आई थिंक अराउंड 500, नॉट 1000, आई थिंक 500 to 1000 पीपल के बीच में कहीं पे वहां पे ब्रिज पे लोग थे। ठीक है। ओके। पर उसका लिमिट कितना था? सिर्फ 150 था। According to the reports, hundreds were on the bridge when it snapped, as there was no crowd control. Crowd का कुछ भी कंट्रोल नहीं था। जितने लोग बस आते ही जा रहे थे, आते ही जा रहे थे, कुछ कंट्रोल नहीं था। People were allowed to walk into that trap. और ऐसे ही लोगों को मौत के जाल में जाने के लिए भेजा ही जा रहा था। ठीक है। कोई उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं था। दैट मीन्स वहां पे अथॉरिटी पूरी तरीके से, जो भी वहां की मेंटेनेंस अथॉरिटी है उस ब्रिज की, वो पूरी तरीके से फेल हो गई। बिकॉज 150 लोग से ज्यादा अगर उस ब्रिज पे अलाउड, उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, तो आप लोग वहां पे कैसे अलाउ कर रहे हो उस लिमिट को क्रॉस करने के लिए? ऑटोमेटिकली ब्रिज वो वेट सहन नहीं कर पाएगा। और केबल्स के ऊपर जो ब्रिज होता है वो नॉर्मली वीक होते हैं, फ्रजाइल होते हैं, एज कंपेयर टू द ब्रिजेस which were constructed with the support of columns. ठीक है। with the support of the columns. Hope this is the basic thing everyone understands. Next paragraph. All this point to a major failure
ऑफ गवर्नेंस एट वेरियस लेवल्स। तो ये सभी चीजें, ऑल दीज थिंग्स, ये जो अभी चीजें हुई हैं, ये इंसिडेंट हो गया और मोर देन 150 पीपल को भेज देना, ये सब चीजें क्या दिखाती है? गवर्नमेंट का फेल्यूर दिखाती है। गवर्नमेंट किस तरीके से फेल कर गई है कई सारे पड़ावों पे। कौन से हैं वो कई सारे पड़ाव? आगे बताते हैं हमें ऑथर। गुजरात इज अमंग द रिचर स्टेट्स ऑफ इंडिया। गुजरात इंडिया के रिचेस्ट, कई जो रिचर स्टेट्स है उनमें से एक गुजरात है। बट इट हैज ऑफन फेस्ड गवर्नेंस चैलेंजेस। बट वो हर बार गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म, गवर्नमेंट को वहां के क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। गवर्नेंस चैलेंजेस मतलब मेंटेन करना चैलेंजिंग है वहां पे। ठीक है, मतलब उन्हें डिफिकल्ट हुआ है गवर्नमेंट को वहां की। क्यों डिफिकल्ट? बिकॉज वहां पे केयरलेसली सभी चीजों को मैनेज किया गया है, अच्छी तरीके से वहां की गवर्नमेंट ने चीजों को मैनेज नहीं किया है। ठीक है, इट्स पुअर मैनेजमेंट ऑफ द पैंडमिक इज अ केस इन पॉइंट। पैंडमिक जब हुआ था तभी भी गुजरात गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया था। ठीक है, उन्होंने वहां पे प्रॉपरली उस सिचुएशन को मैनेज नहीं किया था। वाई? बिकॉज आपने एडिटोरियल में ही पढ़ा था कि जितने वहां पे केसेस, डेथ्स रिकॉर्ड हुए हैं वो उतने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पे नहीं हैं। ऐसे बहुत कई सारे मिसमैनेजमेंट वहां पे हुए थे। ठीक है, ह्यूमन एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन ऑफन कॉज ट्रेजेडीज। ठीक है, ह्यूमन एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, ओमिशन मतलब भूल, ओमिशन एंड कमीशन मतलब जो भी हम भूल जाते हैं, और हमारी जो नेग्लिजेंसी होती है, भूल जाना और नेग्लिजेंसी को हम ओमिशन एंड कमीशन कहते हैं। ओमिट करना मतलब भूल जाना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ओमिशन। ठीक है, ऑफन कॉज ट्रेजेडीज, जो हम हमारी केयरलेसनेस है और हमारी जो भूल जाते हैं, ये कई सारे माइनर 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 चीजें होती है, हमें बहुत ज्यादा बड़ा उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। ठीक है, ऐसी ही चीजों से कई सारे ट्रेजेडीज होते हैं एंड सिग्निफिकेंटली चेंज द इम्पैक्ट ऑफ नेचर। और इससे ही जो नेचुरल डिजास्टर का इम्पैक्ट होता है, अगर उसका थोड़ा ही इम्पैक्ट होना होता है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है उसका इम्पैक्ट हमारा और केयरलेसनेस के वजह से। ठीक है, द पुलिस हैव अरेस्टेड 9 पीपल। 9 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है, इंक्लूडिंग 2 ऑफिशियल्स। उन 9 लोगों में 2 ऑफिशियल्स भी हैं ऑफ द कंपनी। क्लाउड मतलब जो कंपनी के ऊपर पुलिस को डाउट है, उस कंपनी के 2 एम्प्लॉयज को भी, कि इन कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी वजह से शायद ये वही कंपनी है जो जिन्होंने ये रेनोवेट किया था ये ब्रिज को। ठीक है, बट यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि वही कंपनी है या नहीं, बट इट्स 99% इट्स दैट कंपनी ओनली। ठीक है, तभी तो उसे अरेस्ट करें, और किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय को क्यों अरेस्ट करेंगे इस केस में? है ना, इट्स वेरी क्लियर, वी शुड अंडरस्टैंड इट। ठीक है, ओके। सो 9 लोगों में से 2 ऑफिशियल्स हैं उस कंपनी के, एंड द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड कंपनसेशन टू द किन ऑफ विक्टिम्स। ठीक है, जो किन, जो रिलेटिव्स हैं विक्टिम्स के, उनके उनको कॉम्पेंसेशन अमाउंट भी दिया गया है। ठीक है, कुछ पैसे दिए गए हैं। ठीक है, थरो इंक्वायरी एंड फिक्सिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी मस्ट फॉलो क्विकली। एक डिटेल्ड इंक्वायरी, थरो मतलब बहुत ही डिटेल्ड इंक्वायरी होनी चाहिए, और फिक्सिंग द अकाउंटेबिलिटी मतलब कौन जिम्मेदार है इस चीज का, ये भी जल्द से जल्द इसका डिसीजन होना चाहिए। द फाइंडिंग्स शुड बी मेड पब्लिक एज सून एज पॉसिबल। और उस रिपोर्ट से और उस इन्वेस्टिगेशन, उस इंक्वायरी से जो भी रिजल्ट्स, फाइंडिंग्स मतलब जो भी उस रिपोर्ट से निकल के आएगा रिजल्ट्स, वो पब्लिकली डिस्क्लोज करने चाहिए एज सून एज पॉसिबल। एंड द गिल्टी मस्ट फेस एग्जाम्पलरी पनिशमेंट। एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मतलब एक उदाहरण के तौर पे। ठीक है, यानी कि अगर कोई और ऐसी एक्ट आगे फ्यूचर में कमिट करता है तो हमें उसे एग्जाम्पल देके, हम उसे एग्जाम्पल दे सके कि अगर आप भी ऐसे कमिट करते हो कोई मिस्टेक, तो मोरबी में जिस तरीके से पनिशमेंट दी गई थी उन कल्परेट्स को, आपको भी वैसी ही पनिशमेंट दी जाएगी। तो ऐसे एग्जाम्पलरी पनिशमेंट उन्हें मिलनी चाहिए। दैट इज व्हाट ऑथर इज सेइंग अस। ठीक है, नेक्स्ट।
coming out of the long restrictions on travel necessitated by COVID-19 pandemic, मतलब COVID-19 pandemic की वजह से जो necessary हो गया था हमारे लिए restrictions डालना travel पे, उससे बाहर आते हुए coming out मतलब उससे हम बाहर आए. People all over the world appear to binging on travel and outings. मतलब लोग ट्रैवल और आउटिंग्स बाहर निकलने लगे, सभी लोग पूरे विश्व में. ठीक है, पूरे ना ही सिर्फ इंडिया में पर पूरे विश्व में लोग घूमने लगे, बाहर आने लगे. ठीक है. अ स्टैम्पीड मतलब भगदड़ मच गई सियोल में कुछ ही दिन पहले. ये भी रिसेंटली इंसिडेंट है. सियोल इन साउथ कोरिया में किल्ड 154 पीपल लास्ट वीक ये हुआ सियोल में. भगदड़ मच गई और उससे 154 पीपल मर गए. इन इंडिया ऑल्सो रिकॉर्ड नंबर ऑफ पीपल आर थ्रॉन्गिंग. थ्रॉन्गिंग मतलब घूम रहे हैं. हमने पढ़ा था मीनिंग में. थ्रॉन्गिंग का मतलब भीड़ करके जाना, किसी जगह पे एक ही साथ ग्रुप में जाना. बहुत सारे लोग जा रहे हैं, रिकॉर्ड नंबर ऑफ पीपल जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं? टूरिज्म एंड पिलग्रिमेज स्पॉट्स पे. टूरिज्म मतलब जो घूमने फिरने की जगह है, और पिलग्रिमेज मतलब जो जहाँ पे मंदिर हैं. पिलग्रिमेज स्पॉट्स लाइक बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, है ना. वैसे पिलग्रिमेज जो देवभूमि स्थल हैं, एक और लाइक पिलग्रिमेज को वैसे एक तीर्थ स्थान हम कह सकते हैं, है ना. जहाँ पे मंदिर मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, ऐसी जगहों पे लोग जा रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एज पिलग्रिमेज स्पॉट, आस्था के स्थल. ठीक है. While tourism and travel are powerful engines of the economy, tourism और travel क्या है? जरूरी है, पावरफुल engines हैं. मतलब इकोनॉमी को एक पुश देते हैं ये चीजें, हमारी इकोनॉमी को. There must be more attention paid to ensure that they are safe and sustainable. तो हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि वो सेफ हैं और सस्टेनेबल है. मतलब सही तरीके से चल रहे हैं, लंबे समय तक चल रहे हैं. मतलब जहां भी हम टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स पे जा रहे हैं, वो सेफ है पब्लिक के लिए. और आने वाले कई समय तक हम वहां पे आ सकते हैं. ठीक है. Tourist and pilgrimage centers around the country should carry out safety and environment audits. Audits मतलब चेक करना, वेरीफाई करना. क्या वेरीफाई करना? सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल ऑडिट्स. मतलब वहां पे जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, और मतलब पब्लिक पब्लिक को क्या कोई समस्या है, वो सही तरीके से हो रही है, मतलब वो वहां पे वो सही तरीके से उस चीज का प्रबंध हुआ है या नहीं. ठीक है. और एनवायरमेंटल ऑडिट्स मतलब अगर वो कहीं पे दूर पहाड़ों में है, जैसे कि हमने देखा केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो वहां पे कहीं कुछ लैंडस्लाइड्स होने के कोई चांसेस तो नहीं है, बाकी सब ठीक तरीके से है या नहीं. ठीक है. इंश्योर दैट क्राउड मैनेजमेंट एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स. क्राउड मैनेजमेंट मतलब भीड़ को नियंत्रण करना, और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जो पब्लिक के सेफ्टी मेजर्स हैं वो आर इन प्लेस मतलब वो अपने सही जगह पे है या नहीं, मतलब कितना रेडी है या नहीं. अगर कोई इंसिडेंट होता है तो एजेंसीज, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना रेडी है या नहीं, टू अवॉइड ट्रेजेडीज सच एज दिस. ऐसी घटनाएं फिर से ना हो, इसीलिए हमें क्राउड मैनेजमेंट और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को ध्यान देना होगा टूरिज्म और पिलग्रिमेज स्पॉट्स पे. ठीक है. यहाँ पे ऑथर ने हमें सजेशन दिया है. ठीक है. नेक्स्ट पेज. Development of new centers where large number of people are expected should account for such contingencies. ठीक है. ऐसी contingencies ना हो जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसे हमें ध्यान रखना चाहिए. The rapid pace of road and infrastructure development in ecologically sensitive areas such as the Himalayas should be in accordance with the topographic limitations. ठीक है. So rapid infrastructure of roads मतलब जिस गति से, मतलब बहुत तेजी से रोड्स बन रहे हैं. कहाँ पे बन रहे हैं? इकोलॉजिकली सेंसिटिव. सेंसिटिव मतलब बहुत ही नाजुक. ठीक है. वो चीज खराब हो सकती है वहां पे. मतलब सच एज इन हिमालयाज मतलब हम पहाड़ों के बीच से रास्ते बना रहे हैं. टोपोग्राफिक लिमिटेशंस. ठीक है. मतलब हम पहाड़ों को कट करके, हमने देखा है, वहां से गुफाओं से हम रास्ते निकाल रहे हैं. तो वहां पे बहुत ध्यान से हमें बनाना चाहिए
ताकि वो एक बैलेंस बना रहे, ठीक है, नेचर के बीच में और हमारे डेवलपमेंटल जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चरल गोल्स उनके बीच में एक बैलेंस बना रहे। ऐसे जगहों पे बहुत ही ध्यान से रास्तों को और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं, पावर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं हम लोग, बड़े बड़े डैम्स पे है ना, पहाड़ों पे जो भी रिवर्स स्थित हैं, हमने देखा है उत्तराखंड में कई सारे डैम्स हैं, वहां पे कभी कभी कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं, तो ऐसी जगहों पे हमें बहुत ध्यान से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कैरी आउट करना चाहिए। मोर मस्ट बी डन टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ ट्रैवलर्स, और ज्यादा काम करना चाहिए ताकि हम ट्रैवलर्स का जो फ्लो है, मतलब जो भी ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनको कंट्रोल कर सके अकॉर्डिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी ऑफ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। मतलब कहीं पे जहां पे भी जाने की, अगर किसी प्लेस की जो लिमिटेशंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें आगे भेजना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं जिसकी भी केदारनाथ और बद्रीनाथ में हम न्यूज में देखते हैं, आज 150 लोगों का जत्था रवाना हुआ इस जगह से इस जगह, कल और 200 लोगों का जत्था रवाना होगा। ऐसे क्यों करते हैं? बिकॉज वहां पे कैपेसिटी ही उतनी रहती है, ज्यादा लोगों को वहां पे होल्ड करना या फिर मैनेज करने की वहां पे कैपेसिटी नहीं रहती, इसीलिए वहां पे ज्यादा लोगों को नहीं छोड़ा जाता है। तो उन रिस्ट्रिक्शंस को भी हमें ध्यान पे रखना चाहिए, ठीक है, वो जो भी चीजें हैं। टूरिज्म प्रमोशन कैंपेन्स, टूरिज्म प्रमोशन कैंपेन्स मस्ट इंक्लूड, जो भी टूरिज्म को प्रमोट करने वाले कैंपेन्स हैं उसमें क्या इंक्लूड रहना चाहिए? हम देखते हैं ना, लाइक इनक्रेडिबल इंडिया का ऐड आता है, और बाकी सारे जो भी स्टेट्स के टूरिज्म डिपार्टमेंट है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, है ना, जम्मू कश्मीर, इन सब के टूरिज्म डिपार्टमेंट अपने जो भी है टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए कैंपेन्स करते हैं। तो उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए? क्रिएटिंग सेफ्टी अवेयरनेस अमंग द विजिटर्स, विजिटर्स को सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में समझाना चाहिए, उन्हें अवेयर करना चाहिए। एंड लोकल ऑफिशियल्स, ठीक है, मस्ट इंक्लूड क्रिएटिंग सेफ्टी अवेयरनेस अमंग विजिटर्स एंड लोकल ऑफिशियल्स। जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है वो विजिटर्स को भी समझाने हैं कि क्या क्या हमें, किन चीजों का हमें वहां पे ध्यान रखना है, और जो वहाँ के लोकल ऑफिशियल्स हैं उन्हें भी हमें समझाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें उन कैंपेन्स में जो कि टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए एडवर्टीज होती हैं, एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, उसमें भी हमें ये ऐसे लोगों को और वहाँ के लोकल ऑफिशियल्स को एक मैसेज देना चाहिए, उनके थ्रू, उन कैंपेन्स में के थ्रू हमें उनको भी अवेयर करना है, ठीक है, ताकि कोई भी ऐसे ताकि कोई भी ऐसे आगे ट्रेजेडीज ना हो, ठीक है। ओके, सो this was it for the today's class of the editorial. Hope you have liked it. Let me see. We got an article for the skimming also. ठीक है, मतलब हम इसे ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या कहना चाहते हैं ऑथर। A bag full of pythons, a wig lined with gold. प्रेस रिलीजेस कैन ऑफन बी अ ड्राई, मतलब बहुत ज्यादा बोरिंग हो सकते हैं प्रेस रिलीज, बट समटाइम्स दे कंटेन बिजार स्टोरीज ऑफ स्मगलिंग एट एयरपोर्ट्स। पर कई बार बिजार है मतलब अतरंगी, स्ट्रेंज स्टोरीज होते हैं स्मगलिंग की एयरपोर्ट्स पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑथर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं जब भी वो रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, कोई भी मतलब एयरपोर्ट्स पे जाते हैं स्मगलिंग के जो भी इंसिडेंट हुए हैं उन चीजों की रिपोर्टिंग करने वक्त, तभी जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो हमें इस आर्टिकल में बताया है ऑथर ने, ठीक है, हम इसे जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे। फॉर रिपोर्टर्स रिसीविंग प्रेस रिलीजेस इज अ पार्ट ऑफ डेली ग्राइंड। रिपोर्टर्स को हर रोज प्रेस रिलीजेस पे जाना पड़ता है। आई गेट प्रेस रिलीजेस फ्रॉम चेन्नई कस्टम्स, यहाँ पे आई का मतलब ऑथर है। चेन्नई कस्टम्स डिपार्टमेंट से एटलीस्ट वीक रिपोर्टिंग करने के लिए वहां पे उनको बुलाया जाता है। सम टाइम इन द इवनिंग, कई बार इवनिंग के टाइम पे भी बुलाया जाता है। हैविंग बीन इन द प्रोफेशन फॉर 10 years,
सर हमारे ऑथर इस प्रोफेशन में है जर्नलिज्म के, आई नो व्हाट टू एक्सपेक्ट नाउ। अभी उन्हें पता है कि किस तरीके के केसेस आते हैं। ऑफन इट इज अबाउट हाउ अ पैसेंजर एयरपोर्ट विद गोल्ड इनसाइड हिज रेक्टम। ठीक है। मतलब ज्यादातर केसेस वही आते हैं कि पैसेंजर ने अपने जो अपना उनका गोल्ड है, जो स्मगलिंग के मतलब जो स्मगल कर रहे हैं, जो से ला रहे हैं, अपने रेक्टम में छुपाया। रेक्टम इज वेयर योर इंटेस्टाइन्स एंड, आपके बॉडी में जहाँ पे इंटेस्टाइन्स खत्म होती है ना, वहां पे एट दैट पॉइंट वी कॉल्ड एज रेक्टम, वहां पे लोग अपने गोल्ड को छुपा के आते हैं। ठीक है। किसी और देश में कम दाम पे मिलता है, यहाँ पे आके ज्यादा दाम में बेचने का वो कोशिश करते हैं। तो दैट इज स्मगलिंग, दैट इज इलीगल। ठीक है। वो हम तो वो इलीगल तरीके से अक्वायर करते हैं। अगर लीगल तरीके से लेके आएंगे तो यहाँ पे उनको कस्टम्स चार्ज भरना पड़ेगा। ठीक है। कस्टम्स डिपार्टमेंट को कस्टम ड्यूटी लगेगा। सो टू अवॉइड दैट ड्यूटी वो छुपा के आते हैं कई सारी अतरंगी जगहों पे, जो कि आगे ऑथर ने बताया है कि कहाँ कहाँ पे छुपाया है। फर्स्ट इज द रक्तम। ठीक है। I have read hundreds of press releases about passengers being held by custom officials for hiding gold in their rectum. तो हमारे ऑथर कहते हैं कि कई सारे उन्होंने प्रेस रिलीजेस देखे हैं जहां पे पैसेंजर्स को पकड़ा गया है गोल्ड को रक्तम में छुपाए हुए। इन पैसेंजर्स को पकड़ा गया है। सम इयर्स अगो, कुछ साल पहले, आई आस्क्ड कस्टम ऑफिसर्स हाउ द डिपार्टमेंट डिटेक्ट्स दिस। तभी उन्होंने ऑफिसर को पूछा कि भाई आपको पता कैसे चलता है कि इन्होंने रक्त में गोल्ड छुपाया है, राइट? ही लाफ्ड एंड सेड, वो हंसे और उन्होंने कहा, ओनली थ्रू द इंटेलिजेंस ऑफिसर सेंड अस इनपुट्स। ठीक है। इंटेलिजेंस मतलब उनका उनको अभी एक्सपीरियंस हो गया है और ऑफिसर्स उनको इनपुट्स सेंड करते हैं, मतलब कि इस बंदे में कुछ तो कुछ खराबी लग रही है, लाइक सस्पिशन है, ही इज अंडर अ क्लाउड। ठीक है। ही इज अंडर अवर डाउट। ओ, उस पे कुछ तो दाल में काला लग रहा है। और उनके जो वहां पे कस्टम ऑफिसर्स होते हैं, उन्हें इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि उनका फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि ये बंदा कुछ तो छुपा रहा है ना। तो ऐसे इंटेलिजेंस मतलब उनका जो एक्सपीरियंस है उससे उन्हें भी पता चल जाता है कि कैसा बंदा ये है। ठीक है। ऑफिसर सेंडर्स इनपुट्स, इनपुट्स भी मिलते हैं ऑफिसर से। इफ वी चेक 40 to 50 पैसेंजर्स अ डे, अगर कस्टम ऑफिसर 40 से 50 पैसेंजर्स को चेक करते हैं तो विल फाइंड वन और टू ऐसे टाइप के जो रेक्टम में छुपा के आते हैं। एक या दो तो रोज हमें मिल ही जाते हैं। दिस गॉट मी थिंकिंग, व्हाई इज कंसीलिंग गोल्ड इन द रेक्टम स्टिल द प्रेफर्ड मोड ऑफ स्मगलिंग इफ सो मेनी पीपल कॉट बाय द अथॉरिटीज। तभी लोग पकड़े ही जा रहे हैं। ठीक है। आप किसी और भी जगहों पे भी छुपा दो, पर रेक्टम में छुपाने के बाद भी अगर लोग पकड़े जा रहे हैं तो अभी भी क्यों इतने सारे लोग इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं? क्यों अभी भी लोग रेक्टम में अपने छुपा के ला रहे हैं गोल्ड को? ठीक है। दिस इज व्हाट ऑथर को ऐसे क्वेश्चन आया है अपने माइंड में। ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, व्हाट्स हैपनिंग हियर? ओके, नेक्स्ट पेज। Several animals also make their way into Chennai airport. कई बार तो एनिमल्स भी छुपा के लोग लेके आते हैं। 2 years ago, 2 साल पहले, I was shocked to see the pictures and a video of a leopard cub being lifted out of a pink basket. एक पिंक बास्केट में से एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो कस्टम ऑफिसर्स हैं, उन्होंने एक पिंक बास्केट में से एक लेपर्ड के कब को मतलब बच्चे को भी निकाला था। कोई कोई लोग होंगे जिन्होंने एक अपने पिंक बास्केट में लेपर्ड के बच्चे को छुपा के लेके आए होंगे, तो वो भी उन्होंने पकड़ लिया था ऑफिशियल्स ने। ऑफिशियल्स वर ट्राइंग टू फीड द कब। पकड़ने के बाद ऑफिशियल्स ने उस कब को कुछ खिलाया, विच वॉज जस्ट अ मंथ ओल्ड। महीना वो सिर्फ एक महीने का था। अ पैसेंजर हैड हिडन द कब इन हिज चेक इन बैगेज। चेक इन बैगेज मतलब जो हाथ में लेके जाने वाला आई थिंक लगेज होता है। चेक इन बैगेज मतलब जो अपना सामान था, इन शॉर्ट जो अपना सामान था उसमें छुपाया था। आई शडर्ड थिंकिंग, मतलब वो सोच के भी ऑथर को
डर लग रहा था, बहुत खराब लग रहा था, वो चौंक गए ये सोच के ही ऑफ द टॉर्चर दैट पुअर एनिमल हैड बीन थ्रू एंड द फ्राइट इट कुड हैव कॉज्ड मिड एयर इफ इट हैड मैनेज्ड टू wriggle आउट। wriggle आउट मतलब जब भी वो टॉर्चर उसको कितना सहना पड़ा होगा। वो wriggle आउट मतलब वहां से बाहर निकलना चाहता होगा, ठीक है। कोई भी आप एनिमल को ऐसे कैद करके रखोगे तो वो बार बार निकलने की कोशिश करता होगा, और जो उसे पकड़ के लेके आ रहा है वो उसे बार बार अंदर दबाते रखा होगा, जैसे कि हमने पढ़ा पिंक बास्केट में रखा था उसे, प्लास्टिक के बास्केट में वो भी, ठीक है। तो बार बार उसे अंदर दबा रहा होगा ताकि वो बाहर ना निकले, है ना। सो ऐसे कितना उसे टॉर्चर, पूरे फ्लाइट पे वो आया, पता नहीं कहाँ से वो आया होगा। पूरे फ्लाइट के दौरान उसको उस बास्केट में बंद होके रहना पड़ा, उसको कितना प्रॉब्लम होता होगा। इंसानों को ही जब फ्लाइट में वो ट्रैवल करते हैं तो मैनी टाइम्स वी सीन वो ऑक्सीजन मास्क लगा लेते हैं। तो इस बेचारे एनिमल को, जो लेपर्ड का बच्चा था, उसको तो प्लास्टिक के बास्केट में बंद करके लेके आ रहे थे, तो कितना उसको टॉर्चर सहना पड़ा हुआ ये सोच के ही ऑथर को बहुत ही शॉक हुआ। फ्रॉम टाइम टू टाइम पैसेंजर्स हैव बीन कॉट ट्राइंग टू स्नीक इन, monkeys, reptiles, rodents and so on। ऐसे कई बार, कई समय तक जो पैसेंजर्स हैं वो पकड़े गए हैं मंकीज को लेके आते हुए, रेप्टाइल्स जो भी है, रोडेंट्स मतलब जो चूहे हैं, चूहों के अलग अलग प्रजातियों को लेके आके यहाँ पे वो लोग बेच देते हैं, ठीक है। एक पैसा कमाने का जरिया है, बट दिस इज इलीगल, ठीक है। हाउ डू ऑफिशियल्स गेट होल्ड ऑफ दोज ट्रांसपोर्टिंग सच एनिमल्स? ऑफिशियल्स को कैसे पता चलता है कि उन एनिमल्स को छुपाया गया है? An official told me, एक ऑफिशियल ने ऑथर को बताया, that they look at the passport of the passenger, वो पैसेंजर का पासपोर्ट देखते हैं, द प्लेस ऑफ डिपार्चर, वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, उनका हिस्ट्री देखते हैं। चेक इफ द ट्रैवलर हैज एनी केसेस अगेंस्ट हिम, क्या इससे पहले कोई भी उसके खिलाफ केसेस दर्ज हुए हैं, ठीक है। इन सब के बाद अगर उन्हें डाउट आता है कि भाई इसमें कुछ तो खराबी लग रही है, इस बंदे में कुछ तो दाल में काला है, तो वो उस एक्सपीरियंस हो जाता है ना, आप किसी भी काम को कर रहे हो तो, ठीक है, उस एक्सपीरियंस से वो पता चल जाता है कि इस बंदे में कुछ तो खराबी है, और इसका ट्रैवल हिस्ट्री से भी हमें ये इनपुट्स मिले हैं, तो भाई इसे और डेप्थ में चेक करेंगे इसके बैगेज को, और इसे हम ठीक तरीके से चेक करेंगे, तो वो पकड़े जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देन द बैगेज एग्जामिनेशन गिव्स देम अवे, ही सेड। तो बैगेज एग्जामिनेशन के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, ठीक है। अभी वंस वी स्कैनर द बैगेज ऑफ द पैसेंजर, और एक किस्सा बताते हैं हमें ऑथर। एक बार बैग को स्कैन किया गया पैसेंजर के, वी स्पॉटेड अ डॉल लाइक फिगर, एक डॉल के तरह कुछ तो मिला उनके बैग में, जब उन्होंने स्कैन किया पैसेंजर के बैग में। वी वर सस्पिशियस एंड सेंट इट बैक फॉर स्कैनिंग, तो उन्होंने कुछ तो दाल में काला लगा तो उसे फिर से स्कैन करने के लिए भेज दिया गया बैग को। दिस टाइम द पोजीशन ऑफ द डॉल वाज चेंज्ड, तो इस बार डॉल का पोजीशन जो था वो बदल गया, ठीक है। दैट्स व्हाट दैट्स व्हेन वी ओपनड इट टू फाइंड इट मंकीज, तो उन्हें दाल में काला लगा तो उन्होंने कहा भाई चलो अब अपनी तुम बैग को खोलो, हमें कुछ तो दाल में काला लग रहा है। जब उन्होंने बैग को खोला तो वो एक मंकी निकला। अनदर टाइम, और एक किस्सा बता रहे हैं ऑथर हमें, क्या हुआ और एक बार क्या हुआ। एन ऑफिशियल रिकाउंटेड, उन्होंने बताया, याद किया एक किस्सा, क्या हुआ। हाउ ही एंड हिज कलीग्स पुट देयर हैंड्स इनसाइड अ पैसेंजर्स बैगेज टू एग्जामिन इट्स कंटेंट्स। ने बताया कि कैसे तरीके से हम पैसेंजर के बैग में अपना हाथ डाल के चेक करना, अरे बैग को चेक करेंगे तो अपना हाथ तो डालना ही पड़ेगा ना, राइट। द पैसेंजर हु हैड केम फ्रॉम बैंकॉक, वो पैसेंजर बैंकॉक से आया था, स्टॉप्ड देम, उस पैसेंजर ने रोक दिया कि आप चेक मत करो, एंड एडमिटेड दैट हिज बैग कंटेन्ड बॉल पाइथन्स, मतलब इस बैग में पाइथन्स हैं, अजगर हैं, आप इसमें हाथ मत डालिए। खुद से उन्होंने ऐसे एडमिट कर दिया, कहीं उसने, फिर अगर ऑफिशियल्स को वो काट लेता तो वो इसके ऊपर आता था ना कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तो इसलिए पैसेंजर ने पहले से ही रोक दिया कि भाई इसमें हाथ मत डालो, इसमें अजगर है। द ऑफिशियल्स रिकॉइल्ड इन हॉरर, वो डर गए, ठीक है।
और फिर डर गए। ठीक है, कोई भी अगर आपके सामने से अजगर होगा और आप उसे अनजाने में उसमें हाथ डालते होंगे, तो ऑफ कोर्स जब आप बच जाएंगे, अब जब है ना, बाय गॉड्स ग्रेस आप बोलेंगे ना, हाँ बच गए हम लोग, पर डर तो रहता ही है। ठीक है, वी वर रिलीव्ड दैट ही डिसाइडेड टू टेल अस अबाउट इट। जो ऑथर कहते हैं, जो ऑफिशियल्स थे वो कहते हैं, वी वर रिलीव्ड, हम बच गए, दैट ही डिसाइडेड टू टेल अस अबाउट इट एट लीस्ट एट दैट पॉइंट। ठीक है, मतलब जब चेक इन वेक इन हुआ तब तो उसने नहीं कहा, जब फाइनली उसके बैग में कुछ हमें सस्पेशन हुआ, हम और जब हम हाथ डालने गए, तभी तो उस बंदे ने हमें बताया, एटलीस्ट तब तो बताया। क्या होता अगर हम उसमें हाथ डाल देते? चलो ठीक है, रिलीव्ड मतलब, हाँ, हम कहते हैं ना, एक रिलीफ मिल गया। ठीक है, बच गए। ठीक है, दैट पॉइंट ऑथर ने ऐसा फील किया। After, at least at that point, the officials grinned. After reporting on such cases, ऐसे cases पे reporting के बाद, I admit I have often felt nervous on flights, wondering if passengers around me carrying snakes or monkeys. तो ऐसे सब चीजों को रिपोर्टिंग करने के बाद अब ऑथर को हमेशा ये बात सताती है कि कहीं मेरे जो बाजू में को पैसेंजर है, वो ऐसे कोई मंकियां, अजगर, स्नेक्स को तो लेके नहीं घूम रहा है। ठीक है, देयर हैव सम आल्सो बीन सेवरल केसेस ऑफ गोल्ड बीइंग सीज्ड। एनिमल्स तो सीज होते ही हैं, गोल्ड भी सीज किया गया है। सीज मतलब जब्त किया गया है। सम इंस्टेंसेस सीम्स स्ट्रेट आउट ऑफ अ फिल्म। कई कई बार तो इंस्टेंसेस मतलब ऐसे ऐसे सीन्स जो हैं, ऐसे लगता है कि वो सीधे फिल्मी सीन्स हैं, फिल्म से ही बाहर आ गए हैं। पैसेंजर्स हाइड गोल्ड एंड रॉड्स, रॉड्स में छुपाते हैं। MP3 प्लेयर्स मतलब जो म्यूजिक प्लेयर्स होते हैं, स्केट बोर्ड्स में छुपाते हैं, टेबल फैंस में छुपाते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स और फैन हीटर्स, फैन हीटर्स के जो ट्रांसफॉर्मर्स रहते हैं, टॉय कार्स में छुपाते हैं, मोटर कार्स, वॉश पंप्स, पोर्टेबल जूसर्स, ट्रिमर्स, वॉचेस, हेयर ड्रायर्स, कैसेट प्लेयर्स, फुटवेयर, इमरजेंसी LED लाइट्स, कीबोर्ड्स, टू नेम अ फ्यू अप्लायंसेस। ही अप्लायंसेस है, और कई ज्यादा अप्लायंसेस और कई ज्यादा चीजों में लोग छुपाते हैं अपने गोल्ड को। ठीक है, बट देर इज वन केस दैट आई हैव नेवर फॉरगेट। ऑथर कहते हैं, पर एक ऐसा केस है जो कि मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। अ पैसेंजर्स हु हैड नीटली लाइनड हिज विग विद गोल्ड, बहुत अच्छे विग पहनी थी ऑथर ने, जिसमें उन्होंने उस विग में गोल्ड छुपाया था, गॉट कॉट बाय द अथॉरिटीज, फाउंड हिज हेयर स्टाइल सस्पिशियस। अथॉरिटीज को लगा था भाई इस बंदे का हेयर स्टाइल कुछ तो खराब, मतलब बहुत ही अजीब है, इस पे हमें डाउट आ रहा था। तो उन्होंने जब गिवन दीज बिजारे सीजर्स, बिजारे मतलब स्ट्रेंज, सीजर्स मतलब जो जब्त करने की घटनाएं हैं, ऐसे स्ट्रेंज घटनाओं से, यू वुड इमेजिन अ कस्टम ऑफिसर्स जॉब इज एक्साइटिंग। ऐसे सब अतरंगी घटनाओं से तो आपको यही मुझे तो यही लगा था कि ऑफ कस्टम ऑफिसर्स की जॉब बहुत ही एक्साइटिंग होती है। आई टोल्ड एन ऑफिशियल दिस वंस, तो ऑथर ने कहा, ऑन ऑफिशियल्स को कह दिया कि भाई आपकी जॉब तो बहुत एक्साइटिंग होती होगी। ही रिप्लाइड ड्रॉरली, वेल इट्स इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा भाई ये इंटरेस्टिंग तो है, बट इट वुड आल्सो आस्क बट आई वुड आल्सो आस्क यू टू पुट योरसेल्फ इन आवर शूज। पुट योरसेल्फ इन आवर शूज एक इडियम होता है, मतलब तुम खुद को अपने आप को मेरी जगह पे रख के देखो, एंड इमेजिन फाइंडिंग स्नेक्स एंड लेपर्ड कब्स इनसाइड बैगेज। और अपने आप को मेरी जगह पे रख के देखो और ऐसे इमेजिन करो कि तुम्हें उस बैग में हाथ डालना है, चेक करना है, जिसमें से अजगर निकल सकते हैं, मंकीज निकल सकते हैं और कई सारे प्राणी निकल सकते हैं। ठीक है, सो ऐसा उन्होंने कहा। सो दैट वाज इट फॉर द आर्टिकल पर्सपेक्टिव। हमने आज दो आर्टिकल्स पढ़े। होप यू लाइक द टुडेज क्लास, दिस इज योर होमवर्क। यहाँ पे ए कॉलम में देर आर द वर्ड्स, बी कॉलम में वी गॉट इट्स मीनिंग्स, आपको मैच करने होंगे उसके करेक्ट मीनिंग के साथ। ठीक है, और आपका नेक्स्ट होमवर्क क्या होगा, हियर आर सम वर्ड्स जो आपको बताने होंगे, जिसके मीनिंग्स आपको बताने होंगे कमेंट्स सेक्शन में, और मैच द कॉलम्स के भी आपको करेक्ट आंसर्स बताने होंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको सही तरीके से मीनिंग्स आपको याद आएंगी। ठीक है,
और आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आज का होगा, ठीक है। आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा, हाउ डज द गुजरात गवर्नमेंट failed in its administration, ठीक है, in its administrative work, ठीक है, किस तरीके से गुजरात फेल हुआ। तो आपको आज का आर्टिकल हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को आंसर करने में। आपको पॉइंट्स इंक्लूड करने होंगे कि कोविड के टाइम पे गुजरात गवर्नमेंट फेल हो गई, ठीक है, उन्होंने इसे प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया। और अभी का ये मोरबी वाला ब्रिज कोलैप्स का इंसिडेंट, उसमें भी गवर्नमेंट फेल हो गई, ठीक है। ऐसे इंस्टेंसेस को देखे इस तरीके से दिखाता है कि गुजरात गवर्नमेंट सही तरीके से अपना एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पा रही है, ठीक है। ऑन व्हाट बेसिस यू आर टेलिंग, ठीक है, आपको ऐसे आंसर को फ्रेम करना होगा। कमेंट सेक्शन, आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा, ठीक है, आंसर्स। होप यू लाइक द टुडेज क्लास। इफ यू लाइक इट, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है। आपको ये जो आर्टिकल है, ये इंग्लिश का आर्टिकल है, ठीक है, द हिंदू का ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा सभी एग्जाम्स में से। आपका वोकैबुलरी इंप्रूव होगा, आपका रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे, ठीक है। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो आईबीपीएस के हो, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, इंश्योरेंस एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवेज हो, ठीक है, आपको हर जगह पे ये हेल्प करेगा, ठीक है। मैं आपको और एक बात बताना भूल गया, द टोन ऑफ द आर्टिकल। जो फर्स्ट वाला आर्टिकल था हमारा, द ब्रिज वाला, इस पे आर्ट ऑथर का टोन स्टार्टिंग में तो क्रिटिकल था, क्रिटिसाइज किया था गवर्नमेंट को, बट आते आते ऑथर की टोन चेंज हो गई और वो सजेस्टिव हो गई, ठीक है। ऑथर ने सजेस्ट किए मेजर्स की टूरिज्म कैंपेन्स में सेफ्टी अवेयरनेस मेजर्स हो, विजिटर्स को ऐसे किया जाए, ठीक है, उन्हें अवेयर किया जाए, जो भी रोड्स हैं वहां के लिमिट्स को ध्यान में रखा जाए। तो इस आर्टिकल का टोन वाज सजेस्टिव, ठीक है। और यहाँ पे इस आर्टिकल में इट वाज जस्ट इंफॉर्मेटिव, जस्ट हमें इंफॉर्मेशन दे रहे थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे ऑथर, ठीक है। सो आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि व्हाट वाज द टोन ऑफ द आर्टिकल, वहां पे आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। सो ये एस्पेक्ट भी आपका कवर हो गया इस क्लास में। सो होप यू लाइक द टुडेज क्लास। वी विल वाइंड अप until we meet next time. Bye bye, take care and stay tuned with us.